बच्चा बोलो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Thank you. Everyone, respected teachers, respected principal sir, SMDC member and SMDC president. Today in the occasion of Guru Purnima, I want to say a speech. My name is Harsh Kashyap. I am from class 11 and I wish you all a very happy Guru Purnima. Guru Purnima is a festival to thank our gurus. It comes on the full moon day of Ashad month. It is also called Vyas Purnima, the birthday of Ved Vyas Ji. Guru has a very important role in our life. Guru gives us knowledge and shows the right path to lead our life. They help us to become a good human. We should obey, respect and listen to our gurus. Let us thank you to all our gurus today. Thank you. And oh, dear students and my dear teachers, today here we are presenting how teachers and students, how their relation. Okay, so all of you keep quiet, see carefully and keep in your mind how the situations are going in our classroom. नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। क्या आपने मुझे पहचाना? नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैं दीपक, आपका स्टूडेंट। आपने मुझे 5th क्लास में पढ़ाया था मैम। दीपक, बेटा माफ करना, मैंने अभी भी तुम्हें नहीं पहचाना। अब उम्र भी हो गई है तो याद नहीं रख पाती हूँ आजकल। मैं आपको याद दिलाता हूँ। स्कूल में एक दिन एक बच्चे का क्रेयॉन चोरी हो गया था। फिर उसने क्रेयॉन बॉक्स चोरी होने की बात बताई थी और क्रेयॉन बॉक्स का पता लगाने के लिए आपने सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया और उनसे आंखें बंद करने के लिए बोला था। सभी बच्चों की चेकिंग करने पर क्रेयॉन बॉक्स आपको मिल गया और आपने उस बच्चे को लौटा दिया बिना क्लास में ये बताए कि वो क्रेयॉन बॉक्स किसने चुराया था। हाँ बेटा, अब याद आ गया। मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली वो बॉक्स चुराने वाला बच्चा मैं ही हूँ। लेकिन मैम, आपसे एक सवाल है। पूछो बेटा, क्या सवाल है? उस वक्त आपने क्लास में ये बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि ये बात मैं खुद भी नहीं जानती कि उस दिन किस बच्चे ने चोरी की थी, क्योंकि मैंने खुद भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। पर आपने ऐसा क्यों किया मैम? क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो चोरी करने वाला छात्र हो सकता है मेरी नजरों से गिर जाता और शायद मैं उसे अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाती। ओह, मगर आपने बाकी सबकी आंखें क्यों बंद करवाई? ताकि चोर को पहचान कर उसके मित्र उससे मित्रता न तोड़ बैठे। सचमुच आप महान हैं मैम। आपने चोर होने पर भी अपने शिष्य को अपनी और उसके मित्रों की नजरों में गिरने से बचाया। और मैम, मुझे उस दिन अपनी गलती का एहसास हो गया और मैंने एक शिक्षक बनने का संकल्प ले लिया। तो देखा साथियों, सच्चा गुरु किस तरह मुश्किल घड़ी में भी अपने शिष्य का साथ नहीं छोड़ता। गुरु का अर्थ स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन शिक्षक होना नहीं, बल्कि गुरु वो व्यक्ति है जो हर हाल में आपकी भलाई चाहता है और आपको सही राह दिखाता है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं। Morning everyone, my name is Vaishnavi Thakur. I study in class 9. Today is Guru Purnima. Guru Purnima is a special day to honor gurus or teachers in Hinduism, Jainism and Buddhism. It's a time to appreciate the role of teachers in our life.
The Guru removes the darkness of ignorance and guides us towards enlightenment. Our Guru Purnima discipline shows gratitude to their Gurus through prayers, gifts, and spending time together. It's also a good day to start new things. A festival is celebrated on the full moon day of the Arad month. It's believed that Lord Shiva started teaching on this day, and it's also started teaching on this, and it's also the birthday of Sage Vyas, who wrote the Mahabharata. Guru Purnima reminds us how important teachers and in helping us learn the Guru is. It's a day to value their wisdom and the guidance they give us. Let us say thank you to all our teachers today. Thank you. My name is Namita Nidhi. I study in class 9. Today I speak a speech. We celebrate Guru Purnima. A Guru can be your mother, father, teacher, sister, brother, or anyone who guide you the path of peace and success. People celebrate Guru Purnima to give respect to our teachers and Guru. Guru Purnima is also known as Vaisva Purnima. It is celebrate the birthday of Ved Vyas, who wrote the Mahabharata. Thank you. Now I am called Garima Sahu for speech. Good morning, respected teachers, principal sir, and all my dear friends. My name is Garima Sahu from class 12. Today we are celebrating Guru Purnima. Guru Purnima is a very special day to thank and respect our teachers who are like guiding lights in our lives. Guru Purnima is the most important day and is celebrated to say thank you to all the mentors of our life, helping the teachers in any form and guiding them. It is a privilege for me to speak today about Guru Purnima, a major event celebrated to express our love and gratitude for our Gurus. The definition of Guru in Sanskrit is the one who removes darkness. The auspicious holiday of Guru Purnima is observed to honors and advisors. A Guru is someone who illuminates the way to knowledge and drives out darkness. Students and devotees honor their Gurus on this day in appreciation of their teachings and directions. A holiday with particular cultural significance in India. Guru Purnima is celebrated on the full moon day of the month of Ashadha in the Hindu calendar. Teachers are like candles burning themselves to give us light. They help us grow into mature, responsible people by mentoring and encouraging us. Let us commemorate this special day by remembering the role of our Gurus and honoring and upholding their teachings throughout our lives. Thank you. My respected teachers and children, my name is Amrita Dora. I study in class 12 in Tejas Devog. In celebrating of Guru Purnima, I am going to sing a song.
जग से भी ऊंचा, कृपा है स्थान बताया ये गुरु। जीवन भर गुरुवर के सत ज्ञान का अमृत बाटा। जीवन भर सतगुरुवर के सत ज्ञान का अमृत बाटा। अब सिखाया है गुरुवर के जाएंगे, ये गुरुवर चलना है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। All, my name is Johan Tandon. I read in class 3rd. गुरु के बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिन कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान, तब गुरु ही देता है ज्ञान। ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो गुरु है। दुनिया से वाकिफ जो करता है वो गुरु है। हमारे कमियों को जो बताता है वो गुरु है। हमें इंसानियत जो दिखाता है वो गुरु है। हमें जो अच्छा इंसान बनाता है वो गुरु है। हमारे अंदर एक विश्वास जगा दे वो गुरु है। थैंक यू। Hi, I am calling Priyanshi Sharma for speech. My name is Priyanshi Sharma. I study class 4. आज मैं गुरुओं के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। गुरुओं हमें में ज्ञान देकर अच्छा इंसान बनाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आर्या यादव। आई स्टडी इन क्लास 4। मैं आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ बोलना चाहती हूँ। आपसे ही सीखा और जाना, आपको ही अपना गुरु माना। सीखा अब आपसे ही हमने, कलम का मतलब भी आपसे जाना। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अगस्ता पात्रा। आई एम फ्रॉम क्लास 4। I want to tell everyone a speech, a poem. गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपने, गोविंद दियो बताए। And I want to tell a श्लोक too. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। थर्ड, मैं गुरु पूर्णिमा के दिन 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज प्राची राजपूत। आई स्टडी इन क्लास 3rd। मैं गुरुओं के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। धरती कहती, अंबर कहता, बस यही तराना। गुरु आप दीपक हो जिससे रोशन हुआ जमाना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज जसीका सुनवानी। आई एम फ्रॉम क्लास 4th। मैं गुरुओं के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। गुरु ज्ञान का वह दीपक है जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। थैंक यू। Good morning to all respected attendees, principal, teachers and all my dear friends. Today's I would like to speak a few words about Guru Purnima. Guru Purnima is a very important of Sadhya Vidyavan
On Guru Purnima, students give flowers, cards, and gifts to their teachers and. My name is Komal Nisa and my name is Tamaksha Sinha. महान नहीं बाद में अध्यक्ष बोलेंगे। भटक जाता है जब इंसान तब गुरु ही देता है ज्ञान। ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो गुरु है। दुनिया से वाकिफ जो करता है वो ही गुरु है। जो अच्छा इंसान हमारी कमियों को जो बताता है वही गुरु। जो हमें इंसानियत सिखाता है वही गुरु है। हमारे अंदर एक विश्वास जगाता है वही गुरु है। गीतिका निर्मलकर। My name is ख्याति सिन्हा। सब क्लास टीचर को सौंप दिया अपना अपना क्लास में जो भी चाहते हैं। I say to गुरु पूर्णिमा। गुरु ने दी विद्या हमें, हमने दिया सम्मान। गुरु ने सवारा जीवन हमारा। समाज में बोलिए भारत माता की, सरस्वती मैया की, गुरुजनों की, गुरु पूर्णिमा की। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, हमारे शिक्षा समिति के अध्यक्ष महोदय, मेरे सभी स्टाफ बंधु और हमारे पालकगण, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाने के लिए यहाँ पे सब एकत्र हुए हैं। गुरु जो दो शब्द है, गु और रू। गु यानी अंधकार अज्ञान और रू यानी प्रकाश और ज्ञान। ये दो शब्द को मिलाकर गुरु बना है। और गुरु पूर्णिमा हम श्री वेद व्यास जी के जन्मदिन को ही मनाते हैं, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन में। गुरु जी जो होते हैं, गुरु वो हमारे अंधकार रूप को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं और सद्मार्ग दिखाते हैं। यही गुरु की महिमा है। गुरु कभी भी आप लोगों को गलत रास्ते में चलने को नहीं बोलते, इसीलिए गुरु महान है। गुरु सद्मार्ग दिखाते हैं और आपका जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। जय हिंद, जय भारत। नीचे पानी रखो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारे आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य महोदय बेहरा सर, प्रधान पाठक महोदय यादव सर और सभी हमारे गुरुदेव, आप सबके लिए मैं कुछ बोल रहा हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाय। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए।
गुरु की महत्ता को बोले हैं, ठीक है। वाकई में जब हम स्कूल आते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, जब हम स्कूल आते हैं ज्ञान अर्जन के लिए आते हैं। क्या के लिए आते हैं? ज्ञान अर्जन करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते हैं, ठीक है। जब आप घर में रहते हैं तो एक के बाद कितना आता है बताइए? 2। ये कैसे पता चला आप लोग को? बताइए कैसे पता चला? 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है? 3। ये भी पता चल गया आप लोग को। कैसे पता चला? घर में रहकर पता चलता क्या? नहीं चलता ना। तो यही है, हमारे जो बैठे हैं ना यहाँ पे, हमारे गुरुदेव बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं। आप सबको बता दूं, हमारे आत्मानंद के जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी शिक्षिका हैं, वो बहुत ही, है ना, प्रेम के काबिल हैं, क्योंकि ना वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप लोग को। आपको पता, मैं जब आता हूँ ना तो मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है, मेरे को खुशी होता है कि वाकई में मैं स्कूल जाऊँ, बार बार जाऊँ, आप लोग से मिलूँ करके। लेकिन क्या करूँ, व्यस्तता रहता है, मैं हर दिन तो नहीं आ सकता। लेकिन आपको बताऊँ, जैसे आप छोटी लकीर खींचते हैं, क्या लकीर खींचते हैं? इतना सा लकीर खींचते हैं, है ना। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि उसको बड़ा करना है, इतना सा करना है। कैसे बताते हैं? गणित के भाषा में बताते हैं ना। 1 के बाद क्या बताते हैं? अरे जोर से बोलो। 2 के बाद क्या बताते हैं? 3 के बाद क्या बताते हैं? हाँ, जैसे अभी आप लोग 1 2 3 4 बोले ना, अगर हम घर में रहते तो हम लोग ये नहीं बोल पाते या नहीं जान पाते 1 के बाद क्या होता है। तो हमारे गुरु है ना, गुरु ही सिखाते हैं। आपको बताना चाहूँगा, मैं 5वीं क्लास में पढ़ रहा था, उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आप लोग को। मैडम जी, हमारे गुरु होते थे ना, वो कुर्सी में बैठ जाया करते थे, ठीक है। जैसे कुर्सी है ना, उसमें बैठ जाया करते थे और बोलते थे कि आप लोग मेरे को उठाइए, उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाइए करके बोलते थे। तो हम लोग बोलते थे, अरे हमारे शिक्षक हो गए, कैसे बोलते हैं हम लोग को कि एक जगह से उठाने के लिए बोलते हैं, दूसरे जगह ले जाने के लिए बोलते हैं, फिर दूसरे जगह से फिर वहीं पे लाने के लिए बोलते हैं। तो हम लोग सोचते थे ये ढीली क्यों कराते हैं। तब हमको बाद में पता चला कि वो गुरु बोलते हैं कि आप सबका जो एक साथ जो संगठन होता है, जो शक्ति होता है, उसका वो परीक्षण करते थे, बल का, है ना, कि हमारे पास कितना ताकत है। वाकई में पढ़ाई के साथ बल का होना भी जरूरी है ना। तो बल के बारे में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, उसी समय की बात बताता हूँ। 1 किलोमीटर, अभी तो प्राय सभी के स्कूलों में नल है, नल हैंडपम्प है। उस समय क्या होता था, हम लोग एक बाल्टी जा करते थे, ठीक है। बाल्टी और एक डंडा देते थे, और डेली जैसे हम 50 लड़के हैं ना, तो उसमें से 3 4 को जाके पानी लाना है 1 किलोमीटर से। तो हम लोग क्या करते थे, बात करते करते जाते थे, फिर बाल्टी में पानी भरते थे और पानी ला के फिर गुरुजी को देते थे हम लोग। तो वो फिर बोले हम लोग, ये पानी क्यों भराते हैं हम लोग को, डेली पानी क्यों भराते हैं। तो वो स्वच्छता के बारे में बताते थे। और हम लोग का जो मित्रता होती थी, जैसे 4 लड़के आज गए तो 4 और गए और 4 गए, तो ऐसे ही हम लोग आपस में फिर पानी भी लाया करते थे हमारे स्कूल के लिए। हमारे क्लास को हम लोग खुद साफ करते थे। आपको बताऊं, हम लोग खुद झाड़ू लगाते थे, खुद साफ करते थे, कुछ कचरा उठाते थे। ये कौन सिखाया हम लोग को? गुरु सिखाए, है ना भाई। अपने स्कूल को, अपने कक्षा को कौन साफ सफाई करेगा? हम करेंगे। आपको बता दूं, जितने भी हमारे शिक्षक हैं, गुरुदेव बैठे हैं, आप में से IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, सब बनेंगे। लेकिन आपको बताऊं, अब जितने बड़े अधिकारी भी बन जाएं, लेकिन गुरु ही प्रथम, हमारे गुरु ही बड़े होते हैं, ठीक है। गुरु के चरणों में आकर हमें, है ना, प्रणाम करना चाहिए और गुरु का आशीर्वाद सदा लेना चाहिए। बिना गुरु का ज्ञान नहीं, सुने हैं आप लोग, बिना गुरु का ज्ञान नहीं। हमारी माता जो हमारी प्रथम, है ना, प्रथम गुरु है। आप यहाँ से जाने के बाद उनसे सीखते हैं, नहीं सीखते? खासकर बच्चियों को बोल रहा हूँ, आप लोग पढ़ाई बस करते हो कि और कुछ सीखते हो? बताइए बताइए, कितने लोग हैं जो और क्या क्या सीखते हैं? हाथ बताओ एक। अरे शर्माओ नहीं ना, मैं बता रहा हूँ, है ना। आप लोग नहीं बता रहे, मैं बता रहा हूँ। हम लोग अनुशासन सीखते हैं मम्मी से, ठीक है। सवेरे कैसे उठना है, मम्मी डांटती है ना, स्कूल जाना है करके, है ना। उस समय हमारे शिक्षक कहाँ रहते हैं? स्कूल में आ जाते हैं। तो सबसे पहले मम्मी ही उठाती है, ब्रश कराती है ना।
और फिर आप लोग को स्कूल भेजती है, भेजते नहीं भेजते, आप लोग नहीं बताते, बताना चाहिए ना आपको, है ना। ये सब है, हमको जो भी सिखा रहे हैं, चाहे कोई भी सिखा रहे, कहीं पे भी सिखा रहे, वो हमारे गुरु हैं। हमें अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए, है ना। आके हम लोग आके गुड मॉर्निंग करते हैं, कर रहे हैं ना, गुड मॉर्निंग करते हैं ना। किस भाव से क्यों कर रहे हैं गुड मॉर्निंग, बताइए। कोई और खड़े होकर बताइए, कोई भी एक बताइए, गुड मॉर्निंग क्यों करते हैं, बताइए। अरे बताइए ना, गुड मॉर्निंग क्यों। आप तो डेली बोल रहे हो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग मैम बोल रहे हो, क्यों बोलते हो आप, बताओ ना। हाँ, इधर से आए, देखे, रिस्पेक्ट देते हैं हम, आदर करते हैं अपने गुरुओं का, ठीक है। जब हम जाते हैं किसी रास्ते में तो आप लोग नमस्ते करते हो ना, करते हो। कितने लोग नमस्ते करते हैं, हाथ खड़े करो। सब करते हैं, ठीक। अपने गुरुओं का हमेशा आदर करना, ठीक है। और आपको बताऊं, यही ज्ञान के सागर हैं, है ना। सागर में गाता हूं, हमारे पास ज्ञान की कमी है, हमारे गुरुओं के साथ हम लोग सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, IPS IAS बनेंगे, है ना। इसी आशा और विश्वास के साथ अपने वाले को विराम दें। At first, I would like to congratulate all the students क्योंकि इतने कम समय में प्रदर्शन आप लोगों ने किया जो तारीफ़े काबिल है, किंतु इस कार्यक्रम और प्रदर्शन को इतने सटीक ढंग से कम समय में सर के लिए पानी देना भी, इसके पीछे भी किसी गुरु का हाथ है। तो उन गुरुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और अशेष शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा ये आषाढ़ के अंतिम दिवस पर मनाया जाता है। कल से श्रावण का जो महीना है वो शुरू होगा और इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। अब सवाल ये है कि व्यास जी का जन्म आज के दिन हुआ, गुरु पूर्णिमा के रूप में क्यों मनाते हैं, इसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि ये सब शिक्षक दिवस मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के डेट ऑफ बर्थ पर, तो गुरु पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन को क्यों मनाते हैं हम गुरु पूर्णिमा के रूप में। उसका जो सारगर्भित कारण ये है कि हमारे सनातन धर्म में जो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन चारों वेदों को आज के दिन ही उन्होंने पूर्ण किया था और इसकी व्याख्या दुनिया में प्रसारित हुआ था पहली बार। इसीलिए महर्षि वेदव्यास को हम भगवान का अवतार भी मानते हैं और इन्हीं 4 वेदों के रचयिता होने के कारण और चारों वेदों के अनुसार आज की जो दुनिया है भारतवर्ष में, उन्हीं के परंपरा का अनुसरण हम सब कर रहे हैं। इसीलिए वेदव्यास के जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि हम इस परंपरा का निर्वहन आज छत्तीसगढ़ के समस्त विद्यालयों में किया जा रहा है। इसका मूल कारण है कि विद्यार्थियों को हमारी परंपरा के साथ निरंतर जुड़े रहना, जो सही परंपरा है जिसका हमारे पूर्वजों ने फॉलोअप किया है, उस परंपरा से विद्यार्थियों को हमेशा अवगत कराते रहना, उनमें कंटिन्यूएशन, वो जो सीक्रेट ट्रेडिशन है उसको मनाने की परंपरा जारी रखने का मूल उद्देश्य है। हम सभी गुरुओं का आप सभी को विशेष विशेष प्यार, विशेष विशेष धन्यवाद। आप लोगों ने हम सबको यहीं पे सम्मान दिया और हमारे जो गुरु हैं उनको भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, जिनकी वजह से हम यहीं पर आज उपस्थित हैं। तो कहीं न कहीं इन सब में वेदव्यास के उनकी कृति भी चरितार्थ होती है। इसीलिए वेदव्यास के जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। मैं हमारे SMBC के अध्यक्ष महोदय माननीय सुशील यादव जी और हमारे पालक 4-5 पालक यहीं पे सम्मान लिए आए हैं। मैं सभी पालक बंधुओं को
विशेष धन्यवाद देता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमारे विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। भविष्य में भी हमारे इस तरह के कार्यक्रमों में आपकी